بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت عطا کی اور کن کن مراحل سے گزر کر وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پھر اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام لانے کے بعد جو کارنامے انجام دیے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اصل ایران کے باشندے تھے۔ یہ مجوسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا باپ قبیلے کا سردار اور قوم کا پیشوا اور رہنما تھا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے ان چیزوں سے نفرت تھی۔ آگ کی پوجا کرنا اور دوسری چیزوں کو پوجنا، ان تمام چیزوں سے وہ بیزار تھے۔ وہ اسی تلاش میں رہتے تھے کہ مجھے کوئی اچھی راہ مل جائے، میں اس کو منتخب کر کے اس پہ چلوں۔ لہذا ایک مرتبہ انہوں نے نصارہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن ان کے والد نے جب ان کو دیکھا تو ان کو پکڑ کر ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور ان کو جکڑ دیا۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت سلمان فارسی کسی نہ کسی طریقے سے ان بیڑیوں سے چھوٹ کر، والد کی قید سے چھوٹ کر فرار ہو گئے۔ فرار ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، روانہ ہو کر شام پہنچے۔ شام پہنچ کر وہاں پر ایک گرجا تھا عیسائیوں کا، وہاں پر ایک عالم تھا، کیونکہ اس وقت دین عیسوی ہی معتبر دین تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی اس وقت معتبر دین تھا، جو لے کر آئے تھے شریعت اسی پر عمل ہوتا تھا۔ ان عالم کے ساتھ وہ وہاں پر رہنے لگے، ان کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی گئی، لیکن وہ کچھ اچھے نہیں تھے۔ ان کی عادتیں کچھ تھی جو بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو صدقات خیرات کرنے کا حکم دیتے اور اپنے پاس ڈھیپ کر کے رکھتے، یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس وقت اس کے پاس 7 تھیلے اشرفیوں کے موجود تھے۔ یہ تمام منظر دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وفات کے بعد لوگوں کو بتایا کہ اس طریقے سے مسئلہ تھا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس عالم کی جگہ اس کے خاندان میں سے کسی کو رکھنے کے، ایک اچھے اور نیک اور متقی انسان کو وہاں پر رکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ رہنے لگے اور زندگی گزارنے لگے۔ زندگی گزارتے گزارتے جب ان عالم کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اب میں کیا کروں گا، مجھے کہاں جانا ہوگا؟ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی کو اس عالم نے ایک مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے نکل کر فلاں جگہ موصل وہاں پر جاؤ، وہاں ایک عالم ہے، اس عالم کے پاس رہو، وہ عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، اس کے پاس رہو اور دین کو سیکھو۔ چنانچہ چلے، کس طریقے سے سفر کیا ہوگا، کن حالات کا سامنا کرنا پڑنا ہوگا۔ چلتے چلتے یہ ان عالم اور عابد اور زاہد کے پاس پہنچے۔ ان کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت سلمان فارسی انہی کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ان کی وفات کا بھی وقت آیا تو اس وقت انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ آپ یہاں سے ایک دوسری جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک عالم رہتے ہیں، جن عالم کے پاس رہ کر تم دین کو سیکھو۔ نصیبین اس جگہ کا نام تھا۔
वहां पर जाओ, जाकर उस आलिम को मेरा बताना इस तरीके से वो अपने पास रखेंगे और उनके पास रहकर आप दीन सीखो। चनाचे चले, वहां पर पहुंचने के बाद अरसा गुजरा, कुछ अरसे के बाद जब उसकी भी वफात का वक्त आ गया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप अमूरिया एक जगह है, वहां पर जाओ, वहां एक आलिम है, उनके पास रहो और उनके पास दीन सीखो। चुनाचे हजरत सलमान फारसी चले, चलकर वहां पहुंचे, उसके पास भी वक्त गुजारा। अब जब उसकी वफात का भी वक्त आया तो हजरत सलमान ने दरियाफ्त किया कि अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूंगा। पूरा किस्सा सुनाई कि किस तरीके से मैं भाग कर आया हूं घर से, कहां कहां से आया, पहले एक आलिम के पास, फिर दूसरे के पास, फिर आपके पास, अब मुझे बताओ मैं क्या करूंगा। इस पर उन आलिम ने कहा कि अब मेरे ख्याल के मुताबिक कोई ऐसा आलिम नहीं है कि जिसके पास आप जाओगे। हाँ, आखिरी पैगंबर जो आने वाला है उसकी आमद का वक्त करीब आ चुका है। वो मक्का में पैदा होंगे और कुछ अरसे के बाद वो खजूरों वाली जगह की तरफ हिजरत करेंगे और उनकी अलामत यह होगी कि वो सदके का माल कबूल नहीं करेंगे और हदिया का माल कबूल करेंगे। और उनकी एक अलामत और यह होगी कि उनकी शानों के दरमियान मोहरे नबूवत, यानी कबूतरी के अंडे के बराबर शानों के दरमियान गोश्त उभरा हुआ होगा, वही मोहरे नबूवत की अलामत होगी। इसलिए आप मदीने चले जाओ। चुनाचे फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे पास कुछ जानवर थे, एक काफिला मदीने की तरफ जा रहा था। मैंने उन काफिले वालों से कहा कि मेरे पास ये जो बकरियां है, गाय है, ये सब कुछ आप ले लो, बस मुझे मदीना पहुंचा दो। उनसे अहद हो गया। अहद करने के बाद जब वहां से चलने के बाद जब वादी कुरा पहुंच गए तो वहां पर वो गद्दार हो गए लोग। उन लोगों ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये अफवाह फैला दी कि ये गुलाम है, अगर किसी ने खरीदना है तो इसको खरीद लो। चुनाचे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब ये अफवाह फैल गई तो अफवाह फैलने के बाद इन लोगों ने उनको बेच दिया। वहीं पर वादी कुरा में एक यहूदी के हाथ इनको बेच दिया। हजरत सलमान फारसी बयान करते हैं कि मैंने जब वहां पर खजूरों के बाग देखे तो मुझे लगा कि ये वही जगह है, लेकिन मैं इसी तशवीश में था कि ये उस आलिम की वो बताई हुई खजूरों वाली जगह है या कोई और जगह है। इतने में मेरा जो आका था उसने मुझे मदीना के एक यहूदी जिसका ताल्लुक बनु कुरैजा के साथ था उसके हाथ फरोख्त कर दिया। जब उसने मुझे यहां से लिया, लेने के बाद मदीना पहुंचाया, तो जब मैं मदीना पहुंचा तो मदीना पहुंचने के बाद मुझे यकीन हो गया कि यही वो जगह है, खजूरों वाली जगह। अब मैं काम करता रहा, दिन गुजरते गए। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी मक्का में हुई, हुजूर की पैदाइश हुई। मेरे इल्म में कोई बात नहीं थी। हजरत सलमान फारसी बयान करते हैं, फरमाते हैं कि एक दिन में खजूर के दरख्त पर कुछ काम कर रहा था। इतने में मदीना में जो मेरा मालिक था उसके पास एक यहूदी आया। उसने उसको खबर दी कि ये अरब वाले यानी मदीना वाले सब मकाम कुबा पर पहुंचे हैं और एक परदेसी के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। हजरत सलमान फारसी बयान करते हैं कि जब मैंने ये आवाज सुनी तो मुझे कपकपी तारी हो गई। मुझे खजूर के दरख्त से नीचे उतरने की हिम्मत न रही। किसी तरीके से मैं नीचे आया। नीचे आकर मैंने उस शख्स से पूछा कि उनकी हैयत, उनकी कैफियत, उनकी शक्ल सूरत मुझे बताओ, कैसी है क्या नहीं है। कहते हैं इनका जो मालिक था उन्होंने इनको जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें इसमें क्या लेना देना है, तुम जाओ अपना काम करो। चुनाचे उस वक्त में उठा और अपने काम में लग गया। शाम को जब मैं काम से फारिग हो गया तो फारिग होने के बाद मैंने इरादा किया उनके पास जाने का। चुनाचे मेरे पास कुछ खजूरें रखी हुई थी, मैंने उन खजूरों को साथ लिया और साथ लेकर मैं रवाना हो गया और कुबा पहुंचा। वहां पर पहुंचकर मैंने वो खजूरें पेश की और हुजूर से अर्ज किया कि आप और आपके साथी इस वक्त जरूरतमंद हो, आपको इनकी जरूरत है, इसलिए मेरी तरफ से ये खजूरें सदका के तौर पर कबूल करो, ये सदके की खजूरें है।
हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो सदका नहीं खाता हूं, और साथियों से कहा कि ले लो और इस्तेमाल करो। ये देखकर हजरत सलमान फारसी उस आलिम की उस नसीहत को समझ गए कि पहली शर्त जो थी वो तो पूरी हो गई, पहली अलामत तो ये पक्की है। कहते हैं कि मैं देने के बाद वहां से वापस आया, आने के बाद अपने काम में लगा। कुछ अरसे के बाद जब हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मैं फिर से उनके पास गया। जाने के बाद कुछ खजूरें फिर से ली और लेकर कहा कि ये खजूरें हदिया की खजूरें हैं। तो हुजूर ने कहा कि लाओ, खुद भी तनाउल किया और साथियों को भी खिलाया। कहते हैं कि दूसरी अलामत पक्की थी, ये दूसरी अलामत पूरी हो गई जो उस आलिम ने मुझे बताई थी, कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। कहते हैं कि फिर मैं वहां से वापस आया, अपने काम में लग गया। कुछ अरसे के बाद फिर मेरा जाना हुआ, जाकर मैं हुजूर के सामने बैठा। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं हुजूर के पीठ की जानिब गया तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये मोहर नबूवत देखना चाहते हैं। तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई तो हजरत सलमान फारसी ने मोहर नबूवत को देखा और देखकर उसको चूमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आगे बुलाया तो हजरत सलमान फारसी रोने लगे और पूरा किस्सा सुना दिया कि इस तरीके से किन मराहिल से, किन मुसीबतों से मैं गुजर कर यहाँ पर पहुंचा हूं और आज जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस्लाम अता फरमाया। चुनाचे हजरत सलमान फारसी ने जब पूरा किस्सा हुजूर के सामने जिक्र किया, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका जो मालिक है उसके साथ आप मुकातबत करो, यानी उसको कहो कि मैं आपको कुछ माल देता हूं, आप मुझे आजाद कर दो। चुनाचे हजरत सलमान फारसी गए और अपने मालिक से कहा कि मेरे साथ मुकातबत करो कि मैं आपको माल दूंगा, मुझे आजाद कर दो। तो उन्होंने गुस्से में आकर, यानी कहा कि गुस्से में आकर कि मैं उस वक्त आपको आजाद करूंगा जब आप मुझे 40 औकिया दोगे जो सोने की होनी चाहिए, और साथ साथ मुझे 300 खजूर के ऐसे दरख्त जो फल दे रहे होंगे, यानी मुझे खजूर के 300 ऐसे दरख्त होने चाहिए जिनसे फल आएगा, तब जाके मैं आपको आजाद करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हुजूर से कहा कि इस तरीके से। उसने कहा, हजरत ने फरमाया कि मामला पक्का कर दो, उनके साथ मामला तय कर दो। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि तमाम साथी, तमाम ईमानी भाई, इस भाई की मदद करो और खजूरों के जो दरख्त जिसके पास है इसको, इनमें से एक एक, दो दो, तीन तीन, 10 10, 20 20 दे दो और इनके जो कर्ज है वो अदा कर देंगे। चुनाचे मदीना में जितने भी मुमिनीन थे, मुहाजिरीन और अंसार थे, सब ने, कुछ ने 1 दरख्त, कुछ ने 10 दरख्त, कुछ ने 20, कुछ ने 5 दिया। 300 दरख्त पूरे हो गए। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलमान फारसी से कहा कि जाओ और घड़े खोदो। वो घड़े खोदने लगे तो हजरत ने अपने दस्ते अतहर से उन खजूरों के दरख्तों को लगाया और दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ने के बाद वो खजूर उसी साल फल देने के काबिल हो गए और उनसे फल आ गया। एक शर्त तो पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त की फिक्र थी कि 40 औकिया सोना कहां से हम अदा करेंगे। इसी फिक्र और इसी शशोपंज में थे कि एक मर्तबा एक मोमिन आदमी सोने की एक डिल्ली लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हुजूर को दे दी। आपने कहा कि वो हमारा भाई मिस्कीन है, उसको दे दो, वो अपना कर्ज अदा करेगा। उनके हाथ में पकड़ाई। पकड़ाने के बाद उन्होंने जब उसको देखा तो कहा कि इससे कर्ज तो अदा नहीं होगा। हुजूर ने कहा कि जाओ, अल्लाह आपका कर्ज अदा कर देगा। चुनाचे हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने लिया और लेकर फरमाते हैं कि जब मैंने उसका वजन किया तो बराबर 40 औकिया सोने की वो 40 औकिया निकली। मैंने उसको दिया और देकर मैं आजाद हो गया। ये हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला उनके इस्लाम लाने का वाकया है कि किन किन मराहिल से इनको गुजरना पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बहुत ज्यादा उम्र दी थी। बाद रिवायत में 350 साल और बाद रिवायत में आता है कि 250 साल, और अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने 70 और 100 के दरमियान लिखी है। फिर इनके कारनामे क्या रहे। इससे पहले ये मदीना में ही रहते थे, लेकिन जंगे बदर, ओहद वगैरह में शामिल न हो सके। फिर खंदक के मौके पर जब गजवाए खंदक में शामिल हुए तो उस वक्त आपको पता ही है कि क्या कारनामा इन्होंने अंजाम दिया था, किस तरीके से मशवरा दिया था, और फिर खंदक खुदवाई गई थी। उस तरीके से हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस मशवरे से ईमान वाले महफूज रहे और मुशरिकीन को शिकस्त मिल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत
ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔